Okay, beta, good morning. So we are going to start with the next chapter, which is, so we are starting chapter 9. This is 1 and 2 sample estimation problems. Okay, beta, so see, I told you in the beginning of the course that the aim of the course is that you will make predictions about the population from samples, right? यही हमने स्टार्टिंग में बोला था कि that will be the aim. So in these two last chapters, that is what we are going to do. So what we are going to do, I told you, that is called statistical inference. So what is a statistical inference? That you make predictions. Can I suggest that don't make notes? इसमें there are so much of writing. I'll upload. Okay, just understand because we have 2 chapters left, less lectures. So I'll be little fast. Okay? So you make predictions about population. बाकी आपकी मर्जी है बेटा. If you can write fast, but I will say कि समझ लो. ठीक है, upload मैं कर दूँ. Population from samples. Fine, beta. So now there are like just some terminology will work on. ये तो आपको क्लियर है ना स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है. वी हैड सीन दैट देयर आर टू काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स. वन इज डिस्क्रिप्टिव, वन वाज इन्फरेंशियल. डिस्क्रिप्टिव में यू स्टडी मीन, मीडियन, ऑल दोस थिंग्स. इन्फरेंशियल कैलकुलस में यू मेक प्रेडिक्शंस, राइट. इन्फरेंस जो आप उसमें भी करते हो अपने एक्सपेरिमेंट में. And then we have, there are two types of statistical inference. One is classical method and the other one is Bayesian approach. This is very famous these days. So what is classical method? In classical method, you just rely on the sample data. Okay, so you assume that you know nothing about the population. You just assume, you just see what the information you are getting from the sample and you make predictions about the population using that information. In case of Bayesian approach, this is kind of smart thing. इसमें आप sample data plus some information about the distribution of population. Okay बेटा, so this may be some old data. जैसे नहीं आजकल है आपका machine learning, so you learn from old data, right? So जो नया data आ रहा है वो तो है ही है. Apart from that, we are also using some old data or some information about the population. Okay, so this in this course we will just focus here. We will focus on classical method. Okay, but classical method is the base. अगर आपको classical method समझ में आ गया, then you can always go to that approach also. They will be similar. Just some new equations will be added. Is that thing clear? So that means we are going to study classical method for making predictions about the populations using the sample data. Right now, the problems for statistical inference can be classified into two types. Can be classified into two types. One is estimation problem and the other one is testing of hypothesis. Testing of hypothesis. Okay, beta. So this is what is estimation problem. For example, suppose there in an election, there are two parties, A and B, right? And they want to know कि party A wants to know, predict what percentage of people
मान लो दिस इज लोकसभा इलेक्शन, ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल will vote for them, so what they will do बेटा, क्या करेंगे बोलो, सर्वे करेंगे, राइट. सो वी कैन नॉट आस्क एवरीबडी इन इंडिया, सो दे मेक अ सर्वे, उसमें दे हैव अ सैंपल, राइट. मान लो दे सर्वे 100 people and out of 100 people if 60 people are saying that we are going to vote for party A, so their answer will be 60%, okay. So this is an estimation problem because they are looking for a number. Fine. Estimation problem matlab you are looking for one parameter. It means that this kind of problem means you want to estimate something. It can be anything. मतलब आपका जो you are looking for some numbers. Okay. And what is testing of hypothesis? This is we have already done. इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि somebody makes a claim. Okay. Say engineer or anybody. जैसे यहाँ पे भी पॉलिटिकल गुरु कैन मेक अ क्लेम दैट पार्टी ए विंस, ओके. सो यहाँ पे ये वाली चीज करते हैं बच्चे. सो somebody is claiming that party A will win the Lok Sabha elections. ये हो गया आपका हाइपोथेसिस, ओके. सो दिस इज योर hypothesis. Then what you will do, you will collect your sample data. On the basis of your sample data, you will reject or accept the hypothesis. So this is, here you are not looking for anything, any number. You want to look for an answer which is accept or reject. So that is called testing of hypothesis. Is that okay, beta? So this is your chapter 9. So same kind of problems है, but statement अलग होगी, analysis थोड़ा सा अलग होगा. And this is your chapter 10. Fine, beta? Okay. So let us start with then estimation problem. So we are going to do estimation problems. So we need to know some notations. I'll just do that. So we already know what is population, right? And then suppose we have we call this theta, this is capital theta, okay, capital theta as your sample statistics. Can you give me an example of sample statistics? जो लास्ट चैप्टर में पढ़े हमने सैंपल स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से थे? x bar was the sample statistics, right? s square was the sample statistics. t हमने निकाला था which was n minus 1 into s square upon sigma square, that was also a sample statistics, right? So all these are sample statistics, example of sample statistics. Okay, so you have one thing, you have population parameters. Can you give an example of population parameters? Mu and sigma, right, associated with population. Then we have sample statistics. Then we have something called point estimate of a, इसको मैं थीटा से डिनोट करूंगी, थीटा, स्मॉल थीटा. This is sample statistics. Point estimation of a population parameter theta is a single value theta cap of sample statistics, कैपिटल थीटा cap. देखो ये डेफिनेशन है. So you see, you have a population parameter which you want to estimate. We are giving it a notation theta. Is this thing clear बेटा? जैसे मान लो आपने पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट करना है, तो हमने म्यू को आपको एस्टिमेट करना है
x bar will be your sample statistics. x bar क्या है बेटा? Is it a number? It is a random variable, right? One particular value of that random variable will estimate your mean. Is that okay? तो मैं क्या कर सकती हूँ? Can you give me something which can estimate your mean? I have x bar and I want to make a point estimation about the population mean. So what should be the number? Can I take the expectation of x bar? You can take the expectation of x bar. X bar is a random variable बेटा. आप ध्यान से सुनिए कैसे था वो. ये देखो. You had this population. इसका कुछ मीन है which you want to predict. तो अभी हम क्या करेंगे? हम एक सैंपल उठाएंगे. ठीक है, सैंपल उठाया, मान लो 100 साइज है उसका, राइट? तो हमने बार बार क्या किया, सैंपल उठाना है 100 साइज का बार बार. ओके, एक बार उठाया उसका मीन x1 बार, फिर से उठाया x2 बार, फिर से उठाया x3 बार. डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर x बार. These numbers are your x bar. Okay, so x bar is a random variable assuming these values. तो अब इन सब का अगर मैं मीन वैल्यू ले लूं, that will be my estimation for mu. Is that okay? So point estimate means आपका जो sample statistics है, क्योंकि जो sample statistics होगा that will not be a number, that will be a random variable. ये देखो यहाँ पे x bar is a random variable, s square is a random variable, t is a random variable, f is a random variable. Last chapter में हमने यही किया ना, sampling distribution. What was sampling distribution? That you are collecting a sample, उससे आप कुछ पैरामीटर्स स्टैटिस्टिक्स प्रेडिक्ट कर रहे हो. ऑल दो स्टैटिस्टिक्स आर योर रैंडम वेरिएबल्स. अब रैंडम वेरिएबल से यू टेक वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल. वो कैसे लेनी है वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो हम देखेंगे कि कैसे लेनी है. इफ यू टेक वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल, दैट विल गिव यू अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ योर पॉपुलेशन पैरामीटर. सो इज द डेफिनेशन क्लियर बेटा? Point estimation of a population parameter theta is a single value theta cap of a sample statistics. Clear? Okay, fine. So now the question is, how do we choose theta, the single value, और कई बार होता है कि एक ही चीज के लिए यू कैन हैव मोर देन वन स्टैटिस्टिक्स. तो कौन सा हम चूज करें, राइट? सो देयर आर डिफरेंस समझ में आ गया ना. ये स्मॉल थीटा, ये एक सिंगल वैल्यू है, ये आपका पूरा रैंडम वेरिएबल. ओके, दिस इज अ सिंगल वैल्यू, दिस इज योर रैंडम वेरिएबल, राइट? सो देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम theta cap. What are those expectations? First is unbiasedness. Okay, what is unbiasedness? A statistic theta cap is said to be unbiased, is said to be unbiased estimator of the parameter, the population parameter theta, if expectation of theta bar cap should be theta. मतलब आपने ऐसा स्टैटिस्टिक्स यूज करना है जिसकी मीन वैल्यू शुड बी इक्वल टू थीटा. थीटा तो एक नंबर है ना. व्हाट इज थीटा? पॉपुलेशन पैरामीटर, राइट? ऑब्वियसली हमें पॉपुलेशन पैरामीटर पता नहीं है, तो इसलिए हम ये यूज नहीं कर सकते, बट दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. ओके, इज दैट ओके? अनबायस्ड का मतलब समझ में आ गया कि आपका जो स्टैटिस्टिक आप चूज करोगे उसका मीन कौन होना चाहिए, जो पैरामीटर आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो, राइट? एंड एग्जैक्टली अचीव नहीं होगी ये चीज क्योंकि वी डोंट नो थीटा, राइट? बट स्टिल आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स गिवन, विल गो फॉर द वन whose mean is closer to theta. Fine, we'll see methods that will tell you कि ये कैसे करना है. बस आपको यहाँ पे अनबायस्ड की डेफिनेशन क्लियर है बेटा? सो यू आर लुकिंग फॉर अ स्टैटिस्टिक्स जिसमें मीन ऑफ द स्टैटिस्टिक शुड बी इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर यू आर लुकिंग फॉर. तो इसमें एक आपका होमवर्क एग्जांपल है, करोगे. शो दैट s square
ओके, तो आपने क्या शो करना है, हियर यू हैव टू शो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, राइट? यही शो करना है ना आपने। एस स्क्वायर क्या होता है, एस स्क्वायर का क्या डेफिनेशन है बेटा बताइए? सैंपल वेरिएंस। अरे 1/n-1 सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू का स्क्वायर, यही तो होता है सैंपल वेरिएंस। ठीक है, म्यू लिखूं या क्या लिखूं, x बार, राइट, क्योंकि सैंपल की बात कर रहे हैं ना बेटा। क्लियर? अब यहाँ पे यू विल सी, स्टार्टिंग में आपको मैंने बोला था कि n-1 से डिवाइड करना है, उसमें द रीजन वॉज कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कम होती है सैंपल की, बट एक रीजन ये भी है कि सैंपल का जो हम वेरिएंस लेते हैं उसमें आइडियली हमें n से डिवाइड करना चाहिए था, जो आपने प्लस टू तक पढ़ा हुआ है तब n से डिवाइड करते थे, राइट? यहाँ पे हमने n-1 से डिवाइड किया है। यू विल सी इफ यू डोंट डिवाइड विद n-1, instead you divide with n, see I can also take this as variance, right? क्योंकि यही मुझे ज्यादा समझ में आता है, ये वाली चीज हमें ज्यादा समझ में आती है ना बेटा, कि वेरिएंस ये होना चाहिए था, पता नहीं क्यों n-1 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट? नाउ यू विल सी, अगर n से करोगे तो दिस इज नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, okay, and we are looking for unbiased estimators, so actually both of them will somehow approximate your variance, but which one is better when you divide it with n-1? Why? Because that one is an unbiased estimate. Is that clear? That makes sense, right? So this is not unbiased if you divide with n, and this here is an unbiased estimate. Okay, ये कर लेना अपने आप, ये बुक में इसका सॉल्यूशन है, सॉल्व एग्जाम्पल। Okay, so the second thing which we look for, this is the first property we look for, okay, unbiasedness. The second property, the second thing we look for is, suppose you have θ1 and θ2 sample statistics for population parameter theta both unbiased, then which one to choose? ओके, तो आपके पास सपोज दो स्टैटिस्टिक्स हैं, θ1 कैप एंड θ2 कैप, बोथ आर अनबायस्ड। इसका मतलब क्या है, दोनों का जो मीन है वो थीटा है। नाउ इन दोनों में से कौन सा चूज करना है? सो द वन, आप बता सकते हैं कौन सा चूज करेंगे बेटा? लॉजिकली सोचो, ये इसमें कुछ वैसा नहीं है। अगर मान लो मैं आपको दो डेटा दूं, ठीक है, एक मीन है आपका, मीन दोनों का सेम ही है। मान लो मुझे पॉपुलेशन पैरामीटर एस्टिमेट करना है, मीन और उसका मीन 15 है, जो मुझे पता है, ठीक है, एक सैंपल है उसका मीन भी 15 है, दूसरा सैंपल है उसका मीन भी 15 है। अब दोनों में से कौन सा मैं कहूंगी ये वाला यूज करूं एनालिसिस के लिए? इसका वेरिएंस कम है ना, क्योंकि जिसका वेरिएंस कम है मतलब वो डेटा ज्यादा इनके पास है, दैट इज एक्चुअली डिपिक्टिंग योर डेटा, राइट? सो वी विल चूज द वन विद लेसर वेरिएंस। Okay, that makes sense, right? So we will choose the one with less variance, should be chosen. Okay beta, clear? So we say that इसको बोलते हैं efficient, most efficient estimator. So what is the definition? Definition is, if we consider all possible unbiased estimators of some population parameter theta, then the one with the smallest variance is called
efficient estimator. Most efficient estimator. Is that thing clear, beta? Okay. So unbiased क्या है कि mean of the estimator should be equal to your population parameter, or most efficient is the one which has the smallest variance. Is this clear? Right. So जैसे आपका ये वाला है, suppose this is my theta. Okay, so this is my theta 1, theta 2, रेड कलर दिख रहा है, मुझे बताइए. See, this is your parameter which you want to estimate. तो इसमें से बताइए theta 1 is unbiased or not? theta 1 unbiased है, उसका मीन थीटा है ना, थीटा मीन थीटा है, राइट. सो दिस इज अनबायस्ड. और थीटा 2 अनबायस्ड है, नॉट अनबायस्ड है ना, उसका मीन कुछ और है. और थीटा 3 अनबायस्ड, राइट बेटा. तो ये पहले ही बाहर हो गया, इसको नहीं लेना. अब इन दोनों में से कौन सा ले? थीटा 3 इज मोस्ट एफिशिएंट. ओके बेटा. सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा कैप है. दिस इज एन एस्टिमेटर. ओके. इसकी वन वैल्यू ऑफ इट इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेटर. समझ में आ गया ना बेटा? क्योंकि हमने तो एक वैल्यू एस्टिमेट करनी है, तो हमने अपने स्टैटिस्टिक की एक वैल्यू देनी है, दैट विल बी योर पॉइंट एस्टिमेट. समझ में आ गया? एस्टिमेटर मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द रैंडम वेरिएबल, एंड पॉइंट एस्टिमेटर मींस यू आर टॉकिंग अबाउट वन वैल्यू ऑफ दैट रैंडम. तो मोस्टली वो वैल्यू कौन सी होती है? एक्सपेक्टेशन ही होती है, क्योंकि आपने अनबायस्ड चूज किया है. अनबायस्ड मतलब एक्सपेक्टेशन वो थीटा के आसपास है, ठीक है. एग्जैक्टली थीटा कभी भी नहीं होगी, ठीक है. अदरवाइज तो वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग, राइट, बट उसके आसपास होगी. ओके. सो मोस्टली दिस वैल्यू विल बी, मोस्टली दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ, कभी कुछ और भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस विल बी द केस. ओके. सो दिस इज पॉइंट एस्टिमेशन. मतलब कोई डाउट है बेटा? तो पॉइंट एस्टिमेशन. सो अब आप बताओ, प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली एस्टिमेट करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट. सो वी गो फॉर इंटरवल एस्टिमेट्स. मतलब हम ये कहते हैं कि आपने मान लो पॉपुलेशन पैरामीटर इज द वन व्हिच यू वांट टू estimate. So we say this is the interval and the probability that your population parameter lies in this interval is 95%. That kind of analysis we expect in probability theory, and that makes more sense. Okay, so that is why we go for, since point estimators are difficult to achieve. Okay, we rely more on interval estimates. Okay beta, so we rely more on interval estimates. So I'll tell you what are interval estimation. What is interval estimation? Let me tell you the definition. Suppose theta is population parameter and you find numbers theta L and theta U such that probability that your theta belongs to this
इंटरवल ओपन और क्लोज, ओपन लेते हैं is equal to 1 minus alpha, then the interval is called a 1 minus alpha times 100% confidence interval. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यू हैव अ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा विच यू वांट टू एस्टिमेट, ओके, दिस इज योर पॉपुलेशन पैरामीटर। इससे पहले हमने क्या कहा कि लुक फॉर अ नंबर विच विल एस्टिमेट योर पॉपुलेशन पैरामीटर, दैट वाज योर पॉइंट एस्टिमेटर। अब हमने एक नंबर नहीं ढूंढना बिकॉज दैट इज डिफिकल्ट टू अचीव, सो वी से लुक फॉर टू नंबर्स, ओके, look for two numbers theta l, that is L for lower limit, U for upper limit of your interval, and if the probability that your population parameter belongs to this interval is equal to 1 minus alpha, okay, probability मान लो आपका population parameter उस interval में उसकी probability 0.99 है, then we say that we have found an interval, we have found a 99% confidence interval. इसका मतलब you are 99% confident that the value of the parameter you are looking for lies on that interval, right? Okay, so for example, if you say, if you say कैप, हाँ नहीं एक नंबर है, ये नोटेशन है, ठीक है, नहीं उसके लिए भी रखा है ना, ये रखा था इसको ऐसे, फिर इसकी एक वैल्यू को ऐसे रखा है ना, ऐसे रखा था ना, ठीक है, तो इसको अभी मैंने, क्योंकि इंटरवल अभी हम इसको भूल ही जाएंगे इसलिए इसको कैपिटल ही यूज करते हैं, नोटेशन है बस, ये नंबर्स है, ओके, कैपिटल थीटा, क्योंकि अर्लियर पॉइंट एस्टिमेटर में आप कैपिटल थीटा ढूंढ रहे थे, अब आप कैपिटल थीटा नहीं ढूंढ रहे, आप दो नंबर्स ढूंढ रहे, तो उसको भी कैपिटल ही रखो, जैसे नोटेशन, इफ यू वांट टू चेंज इट थीटा स्मॉल भी कर सकते हो नोटेशन। Is this clear? For example, if you say, if you find out that probability mu belongs to -1 to 3 is equal to 97%, then -1 to 3 is 97% confidence interval. इसका क्या मतलब है कि दिस इज एन इंटरवल वेयर यू आर 97% श्योर कि आपकी पैरामीटर की वैल्यू लाई करेगी, राइट? नाउ कैन यू टेल मी what we like, what kind of interval we should look for? Okay, let me give you some examples. So 97% confidence interval -100 to 100, और एक ये है 93% confidence interval -3 to 3. Which one is better? कौन सा बेटर है? छोटे वाला, राइट? तो ऐसा नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे ये क्लियर है, ये वाला जो है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल -2.5 to 3, इनमें डाउट हो सकता है, आप यू हैव टू सी, बट वहां पे क्लियर है कि -100 to 100 इज टू बिग, इसका मतलब मैंने कुछ एस्टिमेट ही नहीं किया ना, अगर मैं बता रहा हूँ कि आपका जो मीन है वो -100 to 100, मतलब यू आर गिविंग 200 लेंथ वाला इंटरवल, doesn't make any sense, वहां से तो प्रेडिक्ट नहीं होगा, राइट? तो वाला तो नहीं चाहिए हमें, so we look for intervals which are smaller as well as confidence is high, मतलब probability of theta in that interval should also be high. अब इन दोनों में से we have to check, both can work, okay, so that depends on the situation, you want to be more confident or you want to have a shorter interval, so both can work depending on what you are looking for, depending on what you are looking for. Is that clear beta? तो ये आप बार बार सुनोगे कि 99% कॉन्फिडेंस है, all those things. Now you look at this thing, अब how to find confidence intervals. Definition मैंने आपको बता दी. For example, let us just work on
ओके, कैन यू टेल मी फॉर एक्स बार हम निकाल रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू पॉपुलेशन मीन। ओके, अब मुझे बताइए पॉपुलेशन मीन आपका थीटा हो गया, राइट। व्हाट थीटा बार शुड आई यूज, जिसको मैं बाद में वहां से नंबर्स निकालूंगी। कौन सा थीटा बार यूज करो? अभी एक्स बार, राइट। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। डू आई नो एनीथिंग अबाउट दिस डिस्ट्रीब्यूशन? इसके बारे में मुझे कुछ रिजल्ट पता है कि ये कैसा होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये। कौन सी थ्योरम है? CLT, राइट। सो आई नो this is, I know this is normally distributed con x bar minus mu over sigma square divided by square root of n, sorry sigma divided by, क्योंकि हम वेरिएंस नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं। ओके, ये रिजल्ट मुझे बताएं कि this random variable is normally distributed. This is true for small like all n if your original population is normally distributed. If not, this, let me write down, this is true for all n if original population is normally distributed, otherwise for n greater than equal to 30। ये मैंने पूरा टेबल बना के अपलोड कर रखा है, ठीक है, कि 5 रिजल्ट्स हैं ऐसे हमारे पास, राइट। दिस इज CLT, दिस इज योर सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ओके बेटा, सो इसका मतलब ये वाली जो चीज है, दिस इज, आई नो द वेरिएंस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार, दिस इज माय थीटा, दिस इज माय x बार, राइट। सो आई नो कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका सेंटर मीन है ही, है ना, मुझे पता है, यहां से पता है ना कि इसका मीन जो है वो म्यू है। इसका मतलब दिस इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट। क्लियर बेटा? दिस इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट। नाउ टेल मी व्हाट विल बी माय रीजन फॉर, now I want to look for the numbers theta L, okay, I want to look for these numbers such that this is 1 minus L। कैसे ढूंढूं बेटा? क्लियर है? मैंने दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसमें सॉरी म्यू के होने की प्रोबेबिलिटी शुड बी 1 माइनस एल। तो यहां पे देखिए, अगर ये वाला रीजन अल्फा बाय 2 है तो ये वाला रीजन कितना होगा? अल्फा बाय 2, और ये जो सेंटर में बचेगा व्हाट विल बी दैट? 1 माइनस एल, राइट बेटा? ओके, नाउ कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस पॉइंट? ये वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हमने? काई स्क्वायर में क्या बोला था इसको? काई स्क्वायर अल्फा बाय 2, बट यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को z से डिनोट करते हैं। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड z अल्फा बाय 2, एंड व्हाट इज दिस पॉइंट? माइनस z अल्फा बाय 2, या फिर इसका नाम क्या है? z1 माइनस अल्फा बाय 2, हम ये लिखेंगे। ओके, क्लियर है ना? तो व्हाट इज, ये आपको ऑलरेडी नोटेशन में क्लियर है। व्हाट इज z अल्फा? z अल्फा इज अ पॉइंट such that to right of it the area is alpha। कौन सा एरिया? area under PDF, that gives you probability। is this thing clear beta? okay, so now we know that, so इसको ऐसे लिख दूं मैं कि if you look for, ये जो है आपका, you have to look for this interval x bar minus mu over sigma by square root of n should lie between z alpha by 2 and z minus alpha by 2, z alpha by 2 negative। ऐसे लिख दो। Is this thing clear बेटा? This is the distribution, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां से नहीं आएगा, ये इस ग्राफ से आएगा। This is what I am looking for। यहां से ये ग्राफ बनाया हमने, ग्राफ से ये आया, क्योंकि ये ग्राफ किसका है? इसका, x bar minus mu over sigma by square root है ना, उसका ग्राफ है ना। क्लियर? where z alpha by 2 will be found from the table, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है ना, टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
कोई डाउट बताइए। इज दिस क्लियर? देखो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, राइट। आपने ऐसा इंटरवल ढूंढना है कि आपका ये आपने ढूंढना है, मैंने यहाँ से थोड़ा कर ये यहाँ से नहीं आया, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। उसके बाद मैंने इसका ग्राफ बनाया, ठीक है, इसको भूल जाओ एक बार, ये मैं बाद, ये वाली चीज बाद में आई, ठीक है। तो मैंने पहले ग्राफ बनाया, ये करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हल्का सा गलत किया है, इसका सेंटर जो है क्योंकि अगर आप इस चीज का ग्राफ बना रहे हो तो ये 0 होगा, ठीक है, 0 होगा ना बेटा, हाँ। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का ग्राफ बनाया ना आपने, तो वो 0 होगा। अगर मैं x बार का बनाती तो मैंने सेम बनाया था, मैंने कहा किसका बनाया, x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ n है, तो उसका सेंटर जो है 0, राइट, क्लियर है। तो अब ये ऐसा इंटरवल हमने ढूंढना है, तो इसको लिखो इस फॉर्म में, इसको ऐसे लिखो x बार माइनस म्यू लेस देन z अल्फा बाय 2 टाइम्स सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस z अल्फा बाय 2 सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। सिग्मा पॉजिटिव है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। उसके बाद मुझे म्यू चाहिए सेंटर में, क्या करूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, z अल्फा बाय 2 सिग्मा बाय, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा इक्वालिटी का, इनइक्वालिटी का, राइट, क्लियर। अब मैंने ऐड कर देती हूँ x बार, समझ में आया बेटा? इज दिस क्लियर? सबसे पहले मैंने सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ n से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, मल्टीप्लाई करके तो सेम ही आएगा, बट मैंने माइनस से हाँ ये सेम है बट फिर भी कैलकुलेशन हमारा राइट, ठीक है, चीज सेम है बेटा, बट अगर मैंने माइनस कर लिया कुछ और होता तो फिर चेंज हो जाता। ये तो बाय चांस क्योंकि ये दोनों नंबर्स मिलिटरी हैं, एक -5 एक 5 है, ठीक है, अगर ये -4 तो फिर 4 उल्टा हो जाता है, समझ में आया, राइट। सो it means that probability that mu belongs to this interval x bar minus z alpha by 2 sigma by square root of n to x bar plus z alpha by 2 sigma by square root of n equals to 1 minus alpha, okay, यही है ना। therefore this is your theta L and this is your theta U for mean. So for mean the 1 minus alpha per into 100% confidence interval is given by this, ये आपने याद रखना है, x bar minus z alpha by 2 sigma by square root of n, x bar plus z alpha by 2 sigma by square root of n. Is that okay? अल्फा भी गिवन होगा आपको, इंटरवल तो निकालना है, ठीक है, सैंपल दिया होगा ना, अल्फा दिया होगा, ऐसे होगा कि फाइंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो अल्फा कितना है, हाँ 0.01, फिर उसका हाफ करोगे तो यहाँ पे 0.005 आ जाएगा जो आप टेबल से क्वेश्चन करेंगे अभी हम, ठीक है, ओके विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर।